And tonight, how can I not talk about the death of 16-year-old national level basketball player Hardik Rathi in Haryana's Rohtak. His last moments caught on camera practicing for his next tournament. Those images, I'm sure you've seen them, have gone viral. A teenager on a village basketball court chasing a dream that should, who knows, have taken him to the top of Indian sport at some point. But this was a village basketball court. Of course it was broken. Of course it was unsafe. And now it is too late to pretend that anybody cared. Because we now know that Hardik Rathi's coach and brother had repeatedly pleaded with the authorities in Haryana, warning them that the court was in a decrepit and dangerous state. The poles rusted, which makes Hardik's death not a freak accident, but murder by indifference, murder by negligence. It happened because the system simply did not care. The country has lost a promising young athlete, not because he could not compete, but because the people in charge never bothered to build a safe path for him to try. I feel useless standing here grieving a boy who woke up every day at 4 a.m. to practice, who ended his day with more practice late into the night, who lived and breathed the sport. I feel useless hearing politicians today pointing fingers at each other over the death of a teenager who may have been India's next basketball star or even a global star. Who knows? We will never know what his ceiling was, but we know he had the hunger. Just look at his face. We know he had the discipline. We know he had the talent to already come this far. The BJP government will now throw some compensation money at the family. If the cameras remain on long enough, maybe one of Hardik's siblings will even get a small-time government job to satiate the public mood, and that will be presented as justice. But Hardik is gone. His hunger has ended with him. A sporting dream has died on a broken court in remote rural Haryana. Just like that. And the truth is, once the headlines fade, there will be nothing more to say. NDTV's Reet Kaur Sani visited Rohtak today to bring you this heartbreaking report. 5 years, 5 nationals, countless accolades, and eyes full of dreams. This basketball court was Hardik's life. Who knew that the weight of a basketball pole would crush young dreams in a flash? On Tuesday morning, 16-year-old Hardik Rathi was practicing on the court. CCTV footage shows him jumping and touching the basket. During one of these jumps, he clutched onto the basket's rim and the pole came crashing on him. His friends and playmates rushed to the court. They lifted the pole and rescued Hardik, but it was too late. It was not just an accident, but murder due to official apathy. His family and friends say that numerous complaints to authorities on the rusting pole went unanswered. कम से कम 4 साल पहले इसके बारे में बोला था कि हमने पोल चेंज करवाने, इसके लिए हम ऑफिशियल से भी मिले कम से कम 8 से 10 बार, लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई. In a few days, Hardik was set to leave for the Nationals. For his parents, he was the perfect son, a perfect sports person, their pride. बहुत ही मेहनती बच्चा था. उसके मन में था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं. हर बार उस दिन में 10-10 घंटे मेहनत प्रैक्टिस करता था वो, सुबह शाम दोपहर सभी दिन. कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कि मैं ये नहीं करूँ. वो कहता पापा मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा. जो किसी ने नहीं किया वो करूँगा. मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊँगा कोई नहीं लेगा. देश का नाम रोशन करूँगा. ये कहेगा कि ये हार्दिक का पापा, पूरा इंडिया जानेगा कि तेरे को ये हार्दिक का पापा है. वो जगह ले जाना चाहता था मेरे को. साथ ही अपने छोटे भाई को, अपने साथियों को भी कहता मैं अपने गांव के सभी बच्चों को अपने साथ लेके जाऊँगा. ये दिखाऊंगा ये आप मेरे से, ये मैं इनको लेकर आया हूँ. अपने जैसे सभी को प्लेयर बनाना चाहता था वो. Training for more than 5 years, Hardik had not missed a single tournament since the age of 11. Not a single national. Practicing on his home turf, Hardik's last moments were spent training like any other day. His coach and teammates remember Hardik as a budding talent who was meant to achieve bigger things in life. जी वो वन साइड लड़का था जी, बिल्कुल डिसिप्लिन का तो जी क्या बताएं जी, बहुत अच्छा था जी.
हार्दिक मेरा बड़ा भाई था, साथ में ही खेलते थे हम। हार्दिक का बिहेवियर भी मैम बहुत अच्छा था और वो बाकी फ्रेंडली नेचर भी उसका बहुत ही अच्छा रहा है और बाकी वो खेलता भी सबसे अच्छा था मैम ग्राउंड पे। But as his loved ones bid him farewell, questions linger. Who was responsible for Hardik's death? Who was it that will step up to take accountability? Is this the state in which we expect our sportspersons to thrive? You can see that the condition of the goalpost, when I asked the coach, he was telling me that, these are the courts at which national level players, people who are expected to represent our nation, who are expected to represent their states, this is where they train and this is where they're expected to train and win accolades for the country. So you can imagine that if this is happening with a national level player, you can also imagine what must be the fate of other players. This is Reet Kaur Sahani reporting for NDTV. And joining me live tonight on India Matters is Deepinder Singh Hooda. He's the Congress MP from Rohtak, where this incident happened. In fact, it was from Deepinder Singh Hooda's funds in 2009 that this court was actually built. But remember, it's a BJP government in Haryana that needs to be asked these questions. Mr. Hooda, thank you for speaking to me. My first question to you, isn't this murder by negligence, plain and simple, sir? हाँ, सबसे पहले हमने एक हीरा जैसा भाई खोया है देश ने। हम अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा केवल मात्र 17 वर्षीय हमारा भाई था, हमारा बेटा था और इस परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए परम पिता परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं। आज पूरा हमारा इलाका आज दुख में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है और ये पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही है, जिस लापरवाही को आप आपराधिक श्रेणी में भी आप इसको गिन सकते हैं। Yes. ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एक लॉ में टर्म होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इससे ज़्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकती और ये डेलिब्रेट भी है। पिछले 11 साल से हरियाणा के जो खेल स्टेडियम जो पूर्ववर्ती सरकार में बने थे, वो सारे स्टेडियम्स में सरकार ने ग्रांट रुकवाने का काम किया। खुद कोई ग्रांट दी नहीं, ना कोई उनके रख रखाव देख रेख करने के लिए कोई बजट देने का काम किया, जिसमें से लाखन माजरा गांव का भी हमारा स्टेडियम एक था, जिस स्टेडियम से निकल के बच्चे देश की टीम में बास्केटबॉल में लगातार पहुंच रहे हैं। ये आज लाखन माजरा गांव बास्केटबॉल में देश में आज सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक हमारे लाखन माजरा गांव की गिनती हो रही है। लेकिन सरकार ने ना तो स्टेडियम के लिए कुछ ग्रांट दी। जब 3 साल पहले एक स्थानीय सांसद के रूप में मैंने MP कोटा देने का कार्य किया, ये 3 साल में 2023 से लेकर अब तक 18.5 लाख मेरे MP कोटे से यहाँ पे जो दिया, उसको भी सरकार ने लगवाया नहीं। फाइलों में फाइल चक्कर कटवाए, कभी कोई आके इंस्पेक्टर कर जाए, कोई अपना ठेकेदार। 3 साल के बाद भी आज तक अब कह रहे हैं कि वो अब जाके वो टेंडर करेंगे, यानी कि नियत नहीं थी। MP कोटा भी जो खुद ग्रांट दी स्टेडियम की जो पोल गिरा और जो बाकी है उसकी मेंटेनेंस के लिए, ना कोई अगर स्थानीय सांसद दे, क्योंकि मैं स्थानीय सांसद मैं विपक्ष में हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या यहाँ पे कोई सत्ता दल का कोई MP होता तो क्या ये अलग रिजल्ट आता? मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही हमारे दिलों में इस बात का दर्द है और हम मांग करना चाहते हैं देशवासियों से और देशवासियों के माध्यम से सरकार से कि देशवासी हमारा साथ दें और सरकार परिवार की सबसे पहले मदद करे जी। सबसे पहले परिवार को आर्थिक मदद की भी घोषणा करे सरकार, क्योंकि सरकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है, ये आपराधिक लापरवाही की वजह से हुआ है। और परिवार में एक सरकारी नौकरी और इनके जो पिता हैं वो अभी 39 साल के हैं, उनकी 1 साल की एज बची है, उनको परमानेंट सरकारी नौकरी के माध्यम से, क्योंकि इस लड़के की इतनी अचीवमेंट थी, अगर ये लड़का 18 साल से ज़्यादा होता तो इसको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन इसकी जो है क्योंकि एज थोड़ी कम थी, इसको तो आज उस सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए इसके पिताजी को जो हमारे भाई संदीप हैं उनको परमानेंट किया जाए और आर्थिक मदद की जाए। और जो ये DSO को सस्पेंड किया है रोहतक में, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है सारी बात सामने आए, किन अधिकारियों की वजह से कौन कौन DC थे। ये जो MP कोटा लगने में जो डिले किया, ये संसद में भी मैं उठाऊंगा इस बात को, क्योंकि सारे देश के सांसदों के भी अधिकारों का ये प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया हरियाणा सरकार द्वारा और हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। मिस्टर हुडा, एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रोहतक, आपने
अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया है परिवार को? What assurance have you given the family from your side? देखिए, हम जो है परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं और आज जो है परिवार का दुख बांटने के लिए पूरा हमारा गांव, पूरा एरिया यहाँ पे पहुँचे हैं और हम जो है कहते हैं आश्वासन यही दिया है कि ये हार्दिक का जो सपना है वो ज़रूर टूटा है, लेकिन उनकी आवाज़ हम बंद होने नहीं देंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। परिवार की मदद के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, जो दोषी हैं उनको दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो सारे खेल स्टेडियमों का जो इतना बुरा हाल इस गवर्नमेंट में हो गया है, प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट में, जो हरियाणा जहाँ से खेलों को इतना बड़ा बढ़ावा मिला हरियाणा प्रदेश से, वो पिछले 11 साल से अनदेखी की वजह से जो इतना आज सारे स्टेडियम्स का इतना बुरा हाल हुआ है, उन स्टेडियम्स के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे ताकि हार्दिक की जो ये मैं कुर्बानी कहूँगा, ये जो कुर्बानी है ये जो है कुछ ना कुछ सरकार को इसका जवाब दे हम बनाएं। आपको एक और मैं बात बताऊं, मैंने संसद में भी ये इशू उठाया था। 3,500 करोड़ का खेल बजट आया भारत सरकार का, जिसमें से 28 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को दिया 80 करोड़। ये क्या कसूर था हरियाणा वासी का? आधे से ज़्यादा मेडल देश के हरियाणा लेके आता है। गुजरात जैसे प्रदेशों में 600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ सबसे ज़्यादा, और हरियाणा में सबसे देश में कम। इतना क्या जो है मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े भेदभाव का शिकार हमारा प्रदेश और हमारा इलाका हो रहा है और इसकी हम आवाज़ उठाएंगे। Deepinder Singh Hooda, thank you for speaking to NDTV. We will raise the questions because justice for Hardik Rathi is not just a slogan for us here on NDTV. We'd invited the Haryana Sports Minister to come and take our questions. He refused to appear. He may be busy, but he didn't want to take my questions. We will continue to pursue it. Remember, this tragedy on a day when India has won the right to host the Commonwealth Games in 2030, but we couldn't keep young Hardik Rathi alive. What an incredible tragedy. We will bring his family justice.